एजेकियल 43 चैप्टर 44 चैप्टर हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। एजेकियल 43-44 चैप्टर। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे विनती करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा हम ये वचन सीख सके, समझ सके। ये ज़रूर पुराना नियम है, लेकिन फिर भी हमको चाहिए कि आप हमें सिखाएं, आप हमें चलाएं, आप हमें इसकी समझ, ज्ञान, बुद्धि दे, नासरी यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे 43 चैप्टर। The glory of God returns to the temple. First verse से पढ़ेंगे। Afterward he brought me to the gate, even the gate that looketh toward the east, and behold, the glory of God of Israel came from the way of the east, and his voice was like a noise of many waters. And the earth shined with his glory, and it was according to the appearance of the vision which I saw, even according to the vision that I saw when I came to destroy the city. And the visions were like the vision that I saw by the river Chebar. And I fell upon my face. And the glory of the Lord came into the house by the way of the gate whose prospect is toward the east. So the Spirit took me up and brought me into the inner court, and behold, the glory of the Lord filled the house. And I heard him speaking unto me out of the house, and the man stood by me. And he said unto me, Son of man, the place of my throne and the place of the soles of my feet, where I will dwell in the midst of the children of Israel forever, and my holy name shall the house of Israel no more defile, neither they nor their kings by their whoredom, nor by the carcasses of their kings in their high places, in their setting of their threshold by my thresholds, and their post by my posts, and the wall between me and them. They have even defiled my holy name by their abominations that they have committed. Wherefore I have consumed them in mine anger. Now let them put away their whoredom and the carcasses of their kings far from me, and I will dwell in the midst of them forever. Thou son of man, shew the house to the house of Israel, that they may be ashamed of their iniquities, and let them measure the pattern. And if they be ashamed of all that they have done, shew them the form of the house, and the fashion thereof, and the goings out therefore, and the comings in thereof, and all the forms thereof, and all the ordinances thereof, and all the forms thereof, and all the laws thereof, and write it in their sight, that they may keep the whole form thereof, and all the ordinances thereof, and do them. This is the law of the house upon the top of the mountain. The whole limit thereof round about shall be most holy. Behold, this is the law of the house. And these are the measure of the altar after the cubits. The cubit is a cubit and an hand breadth. Even the bottom shall be a cubit, and the breadth a cubit, and the border thereof by the edge thereof round about shall be a span, and this shall be the higher place of the altar. And from the bottom upon the ground even to the lower settle shall be 2 cubits, and the breadth 1 cubit. And from the lesser settle even to the greater settle shall be 4 cubits, and the breadth and 1 cubit. So the altar shall be 4 cubits, and from the altar and upward shall be 4 horns. And the altar shall be 12 cubits long, 12 broad, square in the 4 squares thereof.
And the settle shall be 14 cubits long and 14 broad in the four squares thereof, and the barrier about it shall be half a cubit, and the bottom thereof shall be a cubit about, and his stairs shall look toward the east. And he said unto me, Son of man, thus saith the Lord God, these are the ordinances of the altar in the day when they shall make it to offer burnt offerings thereon, and to sprinkle blood thereon. And thou shalt give to the priests the Levites, and that be of the seed of Zadok, which approach unto me, to minister unto me, saith the Lord God, a young bullock for a sin offering. And thou shalt take off the blood thereof, and put it on the four horns of it, and on the four corners of the settle, and upon the border round about. Thus shalt thou cleanse and purge it. Thou shalt take the bullock also of the sin offering, and he shall burn it in the appointed place in the house without the sanctuary. And on the second day thou shalt offer a kid of the goats without blemish for a sin offering, and they shall cleanse the altar as they did cleanse it with the bullock. When thou hast made an end of cleansing it, thou shalt offer a young bullock without blemish, and a ram out of the flock without blemish, and thou shalt offer them before the Lord, and the priests shall cast salt upon them, and they shall offer them up for a burnt offering unto the Lord. 7 days shalt thou prepare every day a grate for a sin offering. They shall also prepare a young bullock and a ram out of the flock without blemish. 7 days shall they purge the altar and purify it, and they shall consecrate themselves. And when these days are expired, it shall be that upon the 8th day, and so forward, the priest shall make your burnt offerings upon the altar, and your peace offerings, and I will accept you, saith the Lord God. Chapter 44. Ordinances for the priests. First verse. Then he brought me back the way of the gate of the outward sanctuary, which looketh toward the east, and it was shut. Then said the Lord unto me, The gate shall be shut, it shall not be opened, and no man shall enter in by it, because the Lord the God of Israel hath entered in by it, therefore it shall be shut. It is for the prince, he shall sit in it to eat bread before the Lord. He shall enter by the way of the porch of that gate, and shall go out by the way of the same. Then brought he me the way of the north gate before the house, and I looked, and behold, the glory of the Lord filled the house of the Lord, and I fell upon my face. And the Lord said unto me, Son of man, mark well, and behold with thine eyes, and hear with thine ears all that I say unto thee concerning all the ordinances of the house of the Lord, and all the laws thereof, and mark well the entering in of the house, and with every going forth of the sanctuary. And thou shalt say to the rebellious, even to the house of Israel, Thus saith the Lord God, O ye house of Israel, let it suffice you of all your abominations, in that ye have brought into my sanctuaries strangers uncircumcised in heart and uncircumcised in flesh, to be in my sanctuary to pollute it, even my house, when ye offer my bread, the fat and the blood, and they have broken my covenant because of all your abominations.
And ye have not kept the charge of mine holy things, but ye have set keepers of my charge in my sanctuary for yourselves. Thus saith the Lord God, no stranger circumcised in heart, nor circumcised in flesh, shall enter into my sanctuary of any stranger that is among the children of Israel, and the Levites that are gone away from far from me, when Israel went astray, which went astray away from me after their idols. They shall even bear their iniquity, yet they shall be ministers in my sanctuary, having charge at the gates of the house, and ministering to the house. They shall slay the burnt offering and the sacrifice for the people, and they shall stand before them to minister unto them, because they ministered unto them before their idols, and caused the house of Israel to fall into iniquity. Therefore have I lifted up mine hand against them, saith the Lord God, and they shall bear their iniquity. And they shall not come near unto me to do the office of a priest unto me, nor to come near to any of my holy things in the most holy place, but they shall bear their shame and their abominations which they have committed. But I will make them keepers of the charge of the house for all the service thereof, and for all that shall be done therein. But the priests, the Levites, the sons of Zadok, that kept the charge of my sanctuary when the children of Israel went astray from me, they shall come near to me to minister unto me, and they shall stand before me to offer unto me the fat and the blood, saith the Lord God. They shall enter into my sanctuary, and they shall come near to my table to minister unto me, and they shall keep my charge. And it shall come to pass that when they enter in at the gates of the inner court, they shall be clothed with linen garments, and no wool shall come upon them, whilst they minister in the gates of the inner court and within. They shall have linen bonnets upon their heads, and shall have linen breeches upon their loins. They shall not gird themselves with anything that causeth sweat. And when they go forth into the utter court, even into the utter court to the people, they shall put off their garments wherein they ministered, and lay them in the holy chambers, and they shall put on other garments, and they shall not sanctify the people with their garments, neither shall they shave their heads, nor suffer their locks to grow long. They shall only poll their heads. Neither shall any priest drink wine when they enter into the inner court. Neither shall they take for their wives a widow, nor her that is put away, but they shall take maidens of the seed of the house of Israel, or a widow that had a priest before, and they shall teach my people the difference between the holy and profane, and cause them to discern between the unclean and the clean. And in controversy they shall stand in judgment, and they shall judge it according to my judgments, and they shall keep my laws and my statutes in all mine assemblies. And they shall hallow my Sabbaths, and they shall come at no dead person to defile themselves, but for father, or for mother, or for son, or for daughter, for brother, or for sister that hath had no husband, they may defile themselves. And after he is cleansed, they shall reckon unto him 7 days. And in the day that he goeth into the sanctuary, unto the inner court, to minister in the sanctuary, he shall offer his sin offering, saith the Lord God.
And it shall be unto them for an inheritance. I am their inheritance, and ye shall give them no possession in Israel. I am their possession. They shall eat the meat offering and the sin offering and the trespass offering, and every dedicated thing in Israel shall be theirs. And the first of all, the first fruits of all, of every sort of your oblations shall be the priest's. Ye shall also give unto the priest the first of your dough, that he may cause the blessing to rest in thine house. The priest shall not eat of anything that is dead of itself, or torn, whether it be fowl or beast. 30 वचन को ध्यान रखिए आप, ओके? हम हिंदी में पढ़ेंगे। यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी की पुस्तक 43 और 44 अध्याय BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी की पुस्तक 43 और 44 अध्याय। भवन में परमेश्वर का तेज, पहले वचन से। फिर वह मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्वमुखी था। तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया, और उसके बिना वाणी बहुत से जल की घरघराहट सी हुई, और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उसे नगर का नाश करने को आते समय देखा था, और उस दर्शन के समान जो मैंने कबार नदी के तट पर देखा था, और मैं मोह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्वमुखी था भवन में आ गया। तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचाया, और यहोवा का तेज भवन में भर गया था। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर गॉड। तब मैंने एक जन का शब्द सुना जो भवन में से मुझसे बोल रहा था, और वह पुरुष मेरे पास खड़ा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यहोवा की यह वाणी है, यह तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पाँव रखने की जगह है, जहाँ मैं इस्राएल के बीच सदा वास किए रहूँगा। न तो इस्राएल का घराना और न उसके राजा अपने व्यभिचार से या अपने ऊंचे स्थानों में अपने राजाओं के शवों के द्वारा मेरा पवित्र नाम फिर अशुद्ध ठहराएंगे। वे अपनी डेवढ़ी मेरी डेवढ़ी के पास और अपने द्वार के खंभे मेरे द्वार के खंभों के निकट बनाते थे, और मेरे और उनके बीच केवल दीवार ही थी, और उन्होंने अपने घिनौने कामों से मेरा पवित्र नाम अशुद्ध ठहराया था। इसलिए मैंने कोप करके उन्हें नष्ट किया। ध्यान दीजिए, ओके? जब परमेश्वर का मंदिर है, हम परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर निवास कर रहा है, तो हम परमेश्वर के मंदिर है। ध्यान दीजिए इस बात को, ओके? जब परमेश्वर के मंदिर के साथ कोई छेड़छाड़ करते करते जाता है, तो कोई परवाह नहीं है आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, उनके साथ आप नष्ट के लिए ठहराए जाते हैं, ओके? अब वे अपना व्यभिचार और अपने राजाओं के शव मेरे सम्मुख से दूर कर दे, तब मैं उनके बीच सदा वास किए रहूँगा। हालेलुया। देखो, आपको पश्चातापी हृदय का असर है ये 9 वचन। आपको परमेश्वर के पास, परमेश्वर आपके अंदर, आपके साथ, आपके संगति में महसूस होना चाहिए, जानना चाहिए, तो आपको अपने आप को पश्चातापी हृदय के साथ चलाना पड़ता है। 10 वचन से आगे, हे मनुष्य के संतान, हे इस्राएल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा कि वे अपने अधर्म के कामों से लज्जित होकर उस नमूने को मापे। यदि वे अपने सारे कामों से लज्जित हो, तो उन्हें इस भवन का आकार और स्वरूप और इसके बाहर भीतर आने जाने के मार्ग और इसके सब आकार और विधियाँ और नियम
बतलाना और उनके सामने लिख रखना, जिससे वे इसका सब आकार और इसकी सब विधियां स्मरण करके उसके अनुसार करें। भवन का नियम यह है कि पहाड़ की चोटी के चारों ओर का संपूर्ण भाग परम पवित्र है। देख, भवन का नियम यही है। वेदी की बनावट 13 वचन से आगे। ऐसे हाथ के माप से जो साधारण हाथ से चौवा भर अधिक हो। वेदी की माप यह है, अर्थात उसका आधार 1 हाथ का और उसकी चौड़ाई 1 हाथ की और उसके चारों ओर के छोर पर की पटरी 1 चौवे की। वेदी की ऊंचाई यह है, भूमि पर धरे हुए आधार से लेकर निचली कुर्सी तक 2 हाथ की ऊंचाई रहे और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो, और छोटी कुर्सी से लेकर बड़ी कुर्सी तक 4 हाथ हो और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो, और ऊपरी भाग 4 हाथ ऊंचा हो, और वेदी पर जलाने के स्थान के 4 सींग ऊपर की ओर निकले हो। वेदी पर जलाने का स्थान चौकोर अर्थात 12 हाथ लंबा और 12 हाथ चौड़ा हो। निचली कुर्सी 14 हाथ लंबी और 14 हाथ चौड़ी हो, और उसके चारों ओर की पटरी आधे हाथ की हो और उसका आधार चारों ओर हाथ भर का हो। उसकी सीढ़ी उसके पूर्व की ओर हो। वेदी का अर्पण 18 वचन से आगे। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जिस दिन होम बलि चढ़ाने और लहू छिड़कने के लिए वेदी बनाए जाए, उस दिन की विधियां यह ठहरे, अर्थात लेवीय याजक लोग जो सदोक की संतान है और मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप रहते हैं, उन्हें तो पाप बलि के लिए एक बछड़ा देना। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तब तो उसके लहू में से कुछ लेकर वेदी के चारों सींगों और कुर्सी के चारों कोनों और चारों ओर की पटरी पर लगाना। इस प्रकार से उसके लिए प्रायश्चित करने के द्वारा उसको पवित्र करना। तब पाप बलि के बछड़े को लेकर भवन के पवित्र स्थान के बाहर ठहराए हुए स्थान में जला देना। दूसरे दिन एक निर्दोष बकरा पाप बलि करके चढ़ाना, और जैसे बछड़े के द्वारा वेदी पवित्र की जाए, वैसे ही वह इस बकरे के द्वारा भी पवित्र की जाएगी। जब तो उसे पवित्र कर चुके, तब एक निर्दोष बछड़ा और एक निर्दोष मेढ़ा चढ़ाना, तो उन्हें यहोवा के सामने ले आना, और याजक लोग उन पर नमक डालकर उन्हें यहोवा को होम बलि करके चढ़ाए। 7 दिन तक तो प्रतिदिन पाप बलि के लिए एक बकरा तैयार करना, और निर्दोष बछड़ा और भेड़ों में से निर्दोष मेढ़ा भी तैयार किया जाए। 7 दिन तक याजक लोग वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे शुद्ध करते रहे, इसी भांति उसका संस्कार हो। जब वे दिन समाप्त हो, तब 8वें दिन के बाद से याजक लोग तुम्हारे होम बलि और मेल बलि वेदी पर चढ़ाया करे, तब मैं तुमसे प्रसन्न होऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। पूर्वी फाटक का उपयोग 44 अध्याय पहले वचन से। फिर वह मुझे पवित्र स्थान के उस बाहरी फाटक के पास लौटा ले गया जो पूर्वमुखी है, और वह बंद था। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे और खोला न जाए, कोई इससे होकर भीतर जाने न पाए, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है। इस कारण यह बंद रहे। केवल प्रधान ही प्रधान होने के कारण मेरे सामने भोजन करने को वहां बैठेगा। वह फाटक के ओसारे से होकर भीतर जाए और इसी से होकर निकले। मंदिर में प्रवेश के नियम 4 वचन से आगे। फिर वह उत्तरी फाटक के पास होकर मुझे भवन के सामने ले गया। तब मैंने देखा कि यहोवा का भवन यहोवा के तेज से भर गया है, और मैं मुँह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ध्यान देकर अपनी आंखों से देख, और जो कुछ मैं तुझसे अपने भवन की सब विधियों और नियमों के विषय में कहूँ, वह सब अपने कानों से सुन, और भवन के प्रवेश और पवित्र स्थान के सब निकासों पर ध्यान दे, और
उन बलवाइयों अर्थात इसराइल के घराने से कहना, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इसराइल के घराने, अपने सब घृणित कामों से अब हाथ उठा। अब तुम मेरा भोजन अर्थात चर्बी और लहू चढ़ाते थे, तब तुम बिराने लोगों को जो मन और तन दोनों के खतनाहीन थे, मेरे पवित्र स्थान में आने देते थे कि वे मेरा भवन अपवित्र करें, और उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ दिया, जिससे तुम्हारे साथ घृणित काम बढ़ गए। तुमने मेरी पवित्र वस्तुओं की रक्षा न की, परंतु तुमने अपने ही मन से अन्य लोगों को मेरे पवित्र स्थान में मेरी वस्तुओं की रक्षा करने वाले ठहराया। इसलिए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इस्राएलियों के बीच जितने अन्य लोग हो जो मन और तन दोनों के खतनाहीन हैं, उनमें से कोई मेरे पवित्र स्थान में न आने पाए। लेवीय याजक पद से अलग किए गए, परंतु लेवीय लोग जो उस समय मुझसे दूर हो गए थे, जब इस्राएली लोग मुझे छोड़कर अपनी मूरतों के पीछे भटक गए थे, वे अपने अधर्म का भार उठाएंगे, परंतु वे मेरे पवित्र स्थान में टहलुए होकर भवन के फाटकों का पहरा देने वाले और भवन के टहलुए रहे। वे होम बलि और मेल बलि के पशु लोगों के लिए वध करे और उनके सेवा टहल करने को उनके सामने खड़े हुआ करे, क्योंकि इस्राएल के घराने की सेवा टहल वे उनकी मूरतों के सामने करते थे और उनके ठोकर खाने और अधर्म में फंसने का कारण हो गए थे। इस कारण मैंने उनके विषय में शपथ खाई है कि वे अपने अधर्म का भार उठाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, वे मेरे समीप न आए और न मेरे लिए याजक का काम करे और न मेरी किसी पवित्र वस्तु या किसी परम पवित्र वस्तु को छूने पाए। वे अपनी लज्जा का और जो घृणित काम उन्होंने किए उनका भी भार उठाए, तो भी मैं उन्हें भवन में की सौंपी हुई वस्तुओं का रक्षक ठहराऊंगा। उसमें सेवा का जितना काम हो और जो कुछ उसमें करना हो, उसके करने वाले वे ही हो। याजक 15 वचन से आगे, फिर लेवीय याजक जो सादोक की संतान है और जिन्होंने उस समय मेरे पवित्र स्थान की रक्षा की, जब इस्राएली मेरे पास से भटक गए थे, वे मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करे और मुझे चर्बी और लहू चढ़ाने को मेरे सम्मुख खड़े हुआ करे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, वे मेरे पवित्र स्थान में आया करे और मेरी मेज के पास मेरी सेवा टहल करने को आए और मेरी वस्तुओं की रक्षा करे। जब वे भीतरी आंगन के फाटकों से होकर जाया करे, तब सन के वस्त्र पहने हुए जाए, और जब वे भीतरी आंगन के फाटकों में या उसके भीतर सेवा टहल करते हो, तब उनका कोई वस्त्र न पहने। वे सिर पर सन की सुंदर टोपियां पहने और कमर में सन की जांघिया बांधे हो। किसी ऐसे कपड़े से वे कमर न बांधे जिससे पसीना होता है। जब वे बाहरी आंगन में लोगों के पास निकले, तब जो वस्त्र पहने हुए वे सेवा टहल करते थे, उन्हें उतारकर और पवित्र कोठरियों में रखकर दूसरे वस्त्र पहने, जिससे लोग उनके वस्त्रों के कारण पवित्र न ठहरे। न तो वे सिर मुंडाए और न बाल लंबे होने दे, न केवल अपने बाल कटाए। भीतरी आंगन में जाने के समय कोई याजक दाख मधु न पिए। वे विधवा या छोड़ी हुई स्त्री को ब्याह न ले। केवल इस्राएल के घराने के वंश में से कुंवारी या ऐसी विधवा ब्याह ले जो किसी याजक को की स्त्री हुई हो। वे मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाया करे और शुद्ध अशुद्ध का अंतर बताया करे। देखा, 23 वचन याजक के बारे में दिया है और हमको क्या कहा गया है। हम याजक पद के समाज, राजघराने के याजक पद के समाज में बुलाए गए हैं, है ना। तो हमको याजक का नियम देखो क्या क्या दिया था परमेश्वर ने, है ना। वे विधवा या 23 वचन से आगे, 24 वचन से आगे,
जब कोई मुकदमा हो तब न्याय करने को भी वे ही बैठे और मेरे नियमों के अनुसार न्याय करे। मेरे सब नियत पर्वों के विषय भी वे मेरी व्यवस्था और विधियों का पालन करे और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र माने। वे किसी मनुष्य के शव के पास न जाए कि अशुद्ध हो जाए। केवल माता पिता, बेटे बेटी, भाई और ऐसी बहन के शव के कारण जिसका विवाह न हुआ हो, वे अपने को अशुद्ध कर सकते हैं। जब वे अशुद्ध हो जाए तब उनके लिए 7 दिन गिने जाए और तब वे शुद्ध ठहरे। और जिस दिन वे पवित्र स्थान अर्थात भीतरी आंगन में सेवा टहल करने को फिर प्रवेश करे, उस दिन अपने लिए पाप बलि चढ़ाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उनका एक ही निज भाग होगा, अर्थात उनका भाग मैं ही हूँ। तुम उन्हें इस्राएल के बीच कुछ ऐसी भूमि न देना जो उनकी निज हो। उनकी निज भूमि मैं ही हूँ। वे अन्न बलि, पाप बलि और दोष बलि खाया करे और इस्राएल में जो वस्तु अर्पण की जाए वह उनको मिला करे। सब प्रकार की सबसे पहली उपज और सब प्रकार की उठाई हुई वस्तु जो तुम उठाकर चढ़ाओ, याजकों को मिला करे। देखा आपने, इसके लिए परमेश्वर का कोई भी आप गिविंग टायत होता है, दशमांश या धन्यवाद बलिदान, जो भी आप देते, पलट कर कभी उसका हिसाब नहीं लगाना है आपने, क्योंकि वो याजक के हाथ में जाने का रास्ता परमेश्वर ने ही नियोजित किया है। ओके, कभी उसका आप हिसाब मत लगाओ। याजक के हाथ में देने के बाद आप मुंह फेर दो वहाँ से। ध्यान मत लगाओ कि वो कहाँ जाता है, क्या होता है, क्या करते हैं। ओके, वो उनकी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। ठीक है, बहुत बड़ा खतरा मोल लेते हैं जब हम याजक के हाथ में दे देते हैं और फिर बाद में पलट कर हम उसकी जानकारी लेने के लिए चले जाते हैं। बड़ा उपद्रव हम मोल लेते हैं परमेश्वर के ओर से। ठीक है, ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे तो। ठीक है, और नए अन्न का पहला गूंधा हुआ आटा भी याजक को दिया करना, जिससे तुम लोगों के घर में आशीष हो। याजक को क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। आप लोग और हम लोग आशीषित होंगे अगर परमेश्वर के भवन में हम देते हैं तो। कितना आसान है ये वचन, ये जरिया है सिर्फ परमेश्वर का आपको आशीष करने का। इसके नीचे आप क्या स्वार्थ देखते हैं याजकों को देने में, है ना? जो कुछ अपने आप मरे या फाड़ा गया हो, चाहे पक्षी हो या पशु, उसका मांस याजक न खाए। थैंक यू जीसस। कितना प्यारा है परमेश्वर हमारा, सारी बातों को हमें सिखाता है। वो कोई भी बात में हमको अज्ञान नहीं रहने देता है। ओके, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। पहले हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी से हमको याजक के कैसे प्रकार से परमेश्वर पवित्र मंदिर के विषय में, याजक के विषय में कैसे तू पिता चाल चलन को बरतने का पिता नियम लगाया था। हमें कुछ समझ तो आ गया और कुछ समझ नहीं आया। पिता परमेश्वर, ऐसी बातें जो हम पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे, आबा फादर गॉड, तेरा आत्मा हमारी सहायता करे। पवित्र आत्मा हमारी मदद करो, हमको सिखाओ। पवित्र आत्मा, आप चाहते हो वह समय हमारा पकड़ लो और हमको सिखाओ। थैंक यू जीसस, हमें फिट एंड फिक्स करो, ईश्वरीय रचना और डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आओ। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 16 chapter 12 verse 22 verse, 2 Chronicles 1 chapter 2 chapter। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 12 वचन से 22 वचन। दूसरे इतिहास की पुस्तक 1 अध्याय 2 अध्याय हम पढ़ेंगे। जब अकेले में बैठकर हम अपने व्यक्तिगत समय में, पर्सनल टाइम में पढ़ेंगे, परमेश्वर हमको इन वचनों के आधार से सिखाएगा। हम जो पर्सनालिटी, जो व्यक्ति हमको बनना चाहिए, जिस चरित्र में हमको ढलना चाहिए, वो चरित्र वो हमारे अंदर इन वचनों के अंदर से बना पाएगा।
इसके लिए हम निश्चय किए कि अकेले में बैठकर पढ़ेंगे। आप जिस तरह से इसे पढ़ना चाहते हैं वैसे आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन हमने ये फैसला लिया था साल शुरू होने से पहले, जब हमने पढ़ना शुरू किया तो हमने फैसला लिया था कि हम अकेले में बैठकर 2 साल का बाइबल रीडिंग पूरा करेंगे। ओके, तो ये काम परमेश्वर के आत्मा का है और वो हमारे अंदर मौजूद है। परमेश्वर ने हमको इसीलिए दिया है कि वो हमारा चरित्र बना सके वचनों को सिखा कर, और परमेश्वर के राज्य के लिए हम लाभदायी बन सके। हालेलुया। निश्चित हमने परमेश्वर के अनुग्रह के आत्मा का लाभ लेना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। इन वचनों के आधार से परमेश्वर हमें ईश्वरीय रचना में लेकर आइए, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।